ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ पीडियाट्रिक्स। ठीक है, पीडियाट्रिक्स हम शुरू करेंगे अब। नाउ विल स्टार्ट विथ पीडियाट्रिक्स एंड इन पीडियाट्रिक्स विल जनरली स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज नियोनेटोलॉजी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पीडियाट्रिक्स में कहीं से आते हैं तो दैट इज नथिंग बट नियोनेटोलॉजी। ठीक है, नियोनेटोलॉजी एक कंप्लीट पूरा का पूरा पीडिया है जिसमें यू विल डू एवरी पार्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नियोनेटोलॉजी एक अपने आप में ही एक अलग सब्जेक्ट, बट पीडिया में हम जनरली एक पार्ट पढ़ते हैं जनरली इन यूजी। ठीक है, सो लुक, नियोनेटोलॉजी में द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज इन्फेंट हैज बीन डिटेक्टेड विथ CFTR जीन। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा हमारा। ठीक है, CFTR जीन यानी कि क्या है, व्हाट इज द, अब यहाँ से डायग्नोसिस तो आपका बन गया, CFTR जीन है तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बट क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, उतना इजी नहीं है क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द चैनल डिफेक्ट इन दिस केस। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन चैनल डिफेक्ट? देयर आर like 2 or 3 or 4 generally channel defects, but mainly which is the most common channel defect that is seen in generally cystic fibrosis? So that is nothing but the chloride channel. Look, I'll tell you a little bit about cystic fibrosis at this place only, so that if any questions comes from here you will be able to solve. Look, in this cystic fibrosis, it is an autosomal recessive condition. Okay, थोड़ा सा पेन छोटा करता हूँ। This is an autosomal recessive condition, है ना, and the mutation is seen in the chromosome number 7. This we have already done in our pathology also. नेक्स्ट देखो, प्राइमरी डिफेक्ट देयर विल बी CFTR जीन, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन ऑन क्रोमोजोम 7q31.2, दैट इज द एग्जैक्ट लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अदर डिफेक्ट्स लाइक क्लोराइड चैनल्स, पोटासियम चैनल्स, एपिथेलियम, सोडियम चैनल्स। सो जनरली पोटासियम, एपिथेलियल, सोडियम चैनल, इन सब में डिफेक्ट भी होता है, बट जनरली देखो यहाँ पे सोडियम पोटासियम चैनल दिया हुआ है, बट द मेजर चैनल दैट हैज द डिफेक्ट इज नथिंग बट द chloride channel. ठीक है, chloride channel. Next, sweat ducts normally absorb sodium from the lumen, which decreases in cystic fibrosis, causing salty sweat. Excessive loss of salt in the sweat is there. Other ducts are generally obstructed. Next देखो, hallmark of cystic fibrosis, high sodium and chloride is hallmark of cystic fibrosis. ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएगा तो पूछा जाएगा हमसे जनरली कि व्हाट इज मोस्ट जनरल बायोकेमिकल टेस्ट में क्या ज़्यादा आता है, दैट इज नथिंग बट हाई सोडियम एंड क्लोराइड इज द हॉलमार्क ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। स्वेट क्लोराइड लेवल, यही क्वेश्चन पूछा गया, द मेन दिस exactly has been asked. Sweat chloride level is greater than 60 milliequivalent per liter in 2 occasions. This is giving the diagnosis of cystic fibrosis. Next is airways, pancreas and GIT में normally sodium uptake is there from luminal fluid. In cystic fibrosis normally there is generally sodium uptake from luminal fluid, but in cystic fibrosis there is increase of sodium and water uptake from the lumen, causing thick and viscid secretions. All patients of cystic fibrosis should be screened for generally diabetes, because in cystic fibrosis there is a stagnation of the secretions that leads to scarring and damage to pancreas. As a result, diabetes can be seen in those patients. Generally that leads to insulin deficiency leading to diabetes. Of course, अगर pancreas में problem है, there will be some problem in the beta cells, and if beta cells में problem है, that is going to lead towards the diabetes. False positive sweat chloride test generally eczema, ectodermal dysplasia, malnutrition, congenital adrenal hyperplasia and adrenal insufficiency में देखा जाता है। अभी जनरली इसमें जनरली CFTR जीन में जनरली यू विल बी हैविंग एन, ये 3 चीज़ें ही मैंने यहाँ पे काट के रखा है, इसलिए ज़्यादा मैंने रखा है कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा दिया जाता है जनरली। इफ दे आस्क यू फ्रॉम जनरली द clinical features of the cystic fibrosis, they will give you a history of repeated upper respiratory tract infection with chronic cough and sputum, that would be given. So this you must remember as the clinical feature, और ज़्यादा clinical feature you are aware about it yourself only. So let's see the next question, that is what is the daily fluid requirement for a baby on 3rd day whose birth weight was 1300 grams. ठीक है, birth weight कितना था, 1300 grams. So daily fluid requirement for a baby on the 3rd day will be generally, look here, that is 110 ml per kg per day. That is, look, birth weight generally if less than 1500 gram है एंड इफ मोर देन 1500 ग्राम है। अगर लेस देन 1500 ग्राम है तो जनरली फर्स्ट डे पे 80, सेकंड पे 95, थर्ड पे जनरली 110, फोर्थ पे 120, 5 पे 130, 6 पे 140 एंड जनरली डे 7 एंड ऑनवर्ड्स 150। नेक्स्ट, लेस देन अगर 1500 ग्राम बर्थ वेट है तो देन इट विल बी डे 1 पे 60, डे 2 पे 75, डे 3 पे 90, डे 4 पे जनरली 105, डे 5 पे 120, डे 6 पे 135 एंड जनरली डे 7 पे 150। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, जनरली बेबी ऑन द 3rd डे whose birth rate is 1300 grams. So 1300 gram is generally less than what, 1500 grams. So अगर less than 1500 gram है generally 1300 grams, so that is generally going towards your day 3, that is day 3 110 gram. ठीक है, so less than 1500 gram में। अगर day 3 पे generally greater than 1500 gram पूछते तो that will be generally 90 ml per kg per day. आगे देखो,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एसोसिएटेड विथ कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia एक्सेप्ट, ठीक है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia वी हैव डन अबाउट दिस इन आवर पैथोलॉजी सेक्शंस एंड एक और हमने कहीं पे इसका किया हुआ था, आई हैव डन दिस समवेयर एल्स आल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यस दिस वाज डन इन योर आई थिंक बायोकेम में किया था हमने ये कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia, ठीक है। सो यहाँ पे देखो द ऑप्शंस आर ड्यूबिन जॉनसन, गिलबर्ट सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम एंड बिलियरी अट्रेसिया। सो लुक जनरली associated with conjugated hyperbilirubinemia. So look, congenital hyperbilirubinemia means there is increase in bilirubin that can be further divided into two groups. One is unconjugated hyperbilirubinemia and the next is conjugated hyperbilirubinemia. So unconjugated hyperbilirubinemia is seen in case of Gilbert syndrome and Crigler-Najjar, that is type 1 and type 2, ठीक है। गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रिगलर-नजार ये दो आप याद कर लो, दैट इज अनकंजुगेटेड। बाकी जितने भी यहाँ पे आएंगे लुक कंजुगेटेड में आएंगे, दैट इज रोटर सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन्स, बिलियरी अट्रेसिया, ऑल दिस थ्री विल कम अंडर कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया एंड ऑल थ्री कॉजेज जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव जंडिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जंडिस वाले केस में हमने ये जनरली कहाँ पे देखा था, पैथो में भी देखा हुआ था। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, दैट इज डुबिन जॉनसन, ऑफ कोर्स इट इज देयर, रोटर इज देयर, बिलियरी अट्रेसिया, ऑल ऑफ दिस थ्री कॉजेज जनरली obstructive jaundice, but Gilbert syndrome generally it is an unconjugated hyperbilirubinemia। आगे देखो, identify the condition in a neonate with this swelling of head seen at few weeks of life। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये स्वेलिंग ऑफ हेड दिख रहा है इन अ नियोनेट विथ दिस स्वेलिंग हेड seen at few weeks of life, so this is going towards cephal hematoma। look, a subperiosteal hemorrhage usually involving parietal and temporal bone, parietal और temporal bone को generally क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, that is a subperiosteal hemorrhage। it appears within 12 to 24 hours and generally no edema or discoloration of a scalp is seen, doesn't cross the suture line and resolves in 2 to 3 weeks, most common in forceps delivery, vacuum contraction, vacuum extraction and generally the prolonged labor के केस में जनरली cephal hematoma can be seen। यहाँ पे तीन चीजें आप कर लो, दैट इज यहाँ पे तीन चीजें अगर यहीं पे अगर आप कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वन इज कैपर्ट सक्सेटेनियम, नेक्स्ट इज cephal hematoma एंड द नेक्स्ट इज जनरली सबगैलियल हेमरेज। ये तीनों चीजें दे आर इंटरलिंक टू ईच अदर और बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, ये तीनों में से क्वेश्चन बनते हैं। सो ये तीनों को अगर एक ही बार देख लोगे और डिस्टिंक्टिव फीचर्स देख लोगे अलग अलग, देन यू विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस टॉपिक। और एक ना एक टॉपिक तो आता ही आता है हर एक एग्जाम में। सो लुक, Caput succedaneum is nothing but there will be the edema of scalp of skin, crosses suture line, minimal bleeding will be there and resolves in 2 to 3 days। वहीं पे जो cephal hematoma है जनरली सब पेरियोस्टियल इन लोकेशन होगा, नो इडिमा जनरली और डिस्कॉलरेशन ऑफ द स्काल्प, does not cross the suture line। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैपट सक्सीडेनियम crosses the suture line whereas the cephal hematoma does not crosses the suture line, bleeding is rarely severe and resolves in 2 to 3 days। यहाँ पे भी मिनिमम कैपट सक्सीडेनियम में भी जनरली ब्लीडिंग जो है सो मिनिमम ही होता है। सब गैलियल हेमरेज, सब गैलियल हेमरेज इज बीनीथ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। सब गैलियल हेमरेज इज जनरली बीनीथ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, may extend to orbits that causes raccoon eye and nape, may extend to orbits and nape of the neck, जनरली पीछे तक जनरली भी जा सकता है ना। सो दिस इज बीनीथ जनरली एपिक्रेनियल aponeurosis may extend to orbits that is raccoon eyes and nape, bleeding may be massive and resolves in 2 to 3 weeks, resolves in 2 to 3 weeks। this is subgaleal hemorrhage, so this is subgaleal hemorrhage। और ये क्या था हमारा कैपट, दैट इज cephal hematoma। आगे देखो, अनियोनेट देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी वही दिए होंगे, कैपट सक्सीडेनियम, सब गैलियल ब्लीड एंड इंसिफेलोसिल। तो इंसिफेलोसिल की तो बात ही नहीं बनती। ये देखो ये तीनों के तीनों ऑप्शन भी यहाँ पे सेम आते हैं। सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल दीज थ्री ऑप्शंस एंड ऑल दीज थ्री टॉपिक्स। अ नियोनेट प्रेजेंटेड विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट एक्सरे रिवील्ड एयर बबल्स इन द लेफ्ट हेमिथोरैक्स, what is the probable diagnosis? So respiratory distress, that is nothing but a cardinal sign soon after birth in congenital diaphragmatic hernia, and air bubbles in the left hemithorax, that is further supporting your diagnosis that you have made from generally the respiratory distress ऊपर में। so air bubbles भी है, that is due to the generally herniation of the bowel loops, ठीक है, herniation of the bowel loops in the thoracic cavity, so this is nothing but congenital diaphragmatic hernia, congenital diaphragmatic hernia। आगे देखो, hemorrhagic disease of the newborn is attributed to the deficiency of, so hemorrhagic disease of newborn, hemorrhagic disease of newborn HDNB, this is generally due to the lack of vitamin K, ठीक है। vitamin K एक्चुअली होता क्या है कि vitamin K generally it is produced by the gut flora, all of us know this from generally the
बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय गट फ्लोरा, न्यू बॉर्न गट इज जनरली स्टेराइल, न्यू बॉर्न में जो गट होते हैं दैट इज जनरली स्टेराइल एंड देयर विल बी नो इंटेस्टाइनल फ्लोरा दैट विल प्रोड्यूस जनरली विटामिन के, सो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इन द न्यू बॉर्न। ब्रेस्ट मिल्क जनरली जो होता है, न्यू बॉर्न गट इज स्टेराइल प्लस जो ब्रेस्ट मिल्क है अगेन दैट इज दैट इज वेरी डेफिशिएंट इन विटामिन के, सो वहाँ से भी विटामिन के नहीं मिल पाता, एज अ रिजल्ट जनरली देयर विल बी deficiency of generally vitamin K that will lead to hemorrhages and that is called as generally hemorrhagic disease of newborn, ठीक है, hemorrhagic disease of newborn and treatment will be 1 milligram intramuscular vitamin K given to all baby to prevent hemorrhagic disease of newborn. Look, type of vitamin K used for treatment of hemorrhagic disease of newborn is vitamin K1. umbilical stump bleeding in child on day 1 of life there will be factor 13 deficiency, ये सब बज वर्ड है, याद कर लो। umbilical stump bleeding in child on the 5th day of life that is generally hemorrhagic disease of newborn. Male baby with excessive circumcision bleeding that is going towards your hemophilia A. Vaginal bleeding in a girl child on 5th day of life that is no intervention is required, that can be generally due to the maternal estrogen जो withdrawal इधर उधर होता है, जो extra amount रहता है उसके वजह से हो सकता है। required occurs due to transplacental transfer of generally the hormones, ठीक है, ट्रांसप्लासेंटल जनरली ट्रांसफर ऑफ हॉर्मोन्स। आगे चलिए देखते हैं। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। लोग, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, द मदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, the baby is inside the womb of the mother. Now the blood that is going to the baby is deriving every nutrients from the blood of the mother only. So mother के blood में क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है, जनरली there is sugar. So as a result baby क्या करता है अपने आप को, जनरली he generally adapt to that condition. baby में क्या होता है, जनरली ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, जनरली बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज का, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो क्या करता है कि जनरली जितना भी ब्लड जो हाई शुगर में आ रहा है तो जनरली इंसुलिन यहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको अडेप्ट कर सके। बट जब बेबी बाहर आता है तो उस टाइम तक तो उसके में क्या रहता है, जनरली हाई अमाउंट ऑफ जनरली क्या रहता है, नाउ ही हैज़ हाई अमाउंट ऑफ जनरली बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब वो बाहर आता है तो अब तो वो मदर से न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर रहा डायरेक्टली थ्रू द ब्लड, सो ब्लड तो डायरेक्टली जो हाई शुगर ब्लड है वो नहीं जा रहा, बट जनरली इंसुलिन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा है तो जनरली नाउ जो थोड़ा सा भी शुगर जो ब्लड में उसको इंसुलिन क्या कर दे रहा है, मेटाबोलाइज कर दे रहा है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी जनरली hypoglycemia. So this is the case why hypoglycemia is seen in case of generally the infant of diabetic mother. So this is the hypoglycemia. A newborn is found to have ambiguous genitalia. Okay. Workup shows 17 hydroprogesterone, 17 hydroxyprogesterone, progesterone and DHEAS levels, ठीक है। हाई 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन विच इंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है। सो ये जनरली कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का जनरली ये डायग्नोसिस है। अगर आप देखो तो जनरली दिस इज एम्बिगियस जेनिटेलिया प्लस ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जनरली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ पड़ा है। सो दिस इज जनरली 21 हाइड्रोक्सीलेज, मोस्ट कॉमन 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी होगी। दिस इज जनरली गोइंग टुवर्ड्स योर कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। लुक आई टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ये हमने दूसरे टॉपिक्स में भी हमने किया हुआ है। सो कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में it is also called as adrenogenital syndrome. It is an autosomal recessive disorder caused by the deficiency of enzymes involved in the synthesis of steroid hormones in adrenal cortex. The deficient enzyme may be 21 hydroxylase. It is the most common. मैंने आपको बोला था the most common enzyme deficiency will be 21 hydroxylase, 11 beta hydroxylase, 17 alpha hydroxylase and 3 beta HSD and generally कोलेस्टेरॉल जनरली डेस्मोलेज, ये सब की डेफिशिएंसी जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन 21 हाइड्रोक्सीलेज आपको याद रखना है। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखो तो ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट जनरली बस आप देखो 21 हाइड्रोक्सीलेज जो हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको अगर आप देखोगे तो 21 हाइड्रोक्सीलेज देखो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पर है 21 हाइड्रोक्सीलेज। तो 21 हाइड्रोक्सीलेज की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इससे आगे वाला स्टेप कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 21 हाइड्रोक्सीलेज से आगे वाला स्टेप कुछ भी नहीं होगा। सो जनरली यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज भी जनरली 17 अल्फा हाइड्रोक्सी जो है वो भी जनरली बढ़ेगा। देखो यहाँ पे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों बढ़े हुए हैं। सो यहाँ पे देखो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये साइकिल फर्दर बढ़ेगा ही नहीं। 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी हो गई तो ये 17 अल्फा, ये जो जनरली हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है वो भी जनरली क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन भी जनरली क्या बढ़ेगा, वो क्या होगा, जनरली इट विल इंक्रीज। सो दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी गोइंग टुवर्ड्स कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें मत लगाओ। ये अगर देखोगे 17 अल्फा, ये ऑप्शंस में हमारे पास था। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी होगी तो देयर विल बी ऑल प्रेग्नो
pregnenolone is converted to mineralocorticoid pathway, so there will be excess of mineralocorticoids, that is salt retention and hypertension will be given in the generally features there. No androgen, that will lead to feminization of external male genitalia, male pseudohermaphroditism and female development will be generally normal. 11 beta hydroxylase deficiency अगर हो गया तो cycle will go up to deoxycorticosterone and deoxycortisol which are raised, so there will be generally excess deoxycorticosterone. It has mineralocorticoid activity which results in the hypertension and salt retention. Excess androgen हो जाएगा which results to virilization of the female pseudohermaphroditism. So याद रखना है 17 alpha hydroxylase deficiency में there will be male pseudohermaphroditism and 11 beta hydroxylase की deficiency में there will be female pseudohermaphroditism. In males there will be generally precocious puberty due to excess of androgens. 21 hydroxylase deficiency जो हमने अभी बस देखा था, that is generally the cycle will go up to progesterone, so there will be deficiency of mineralocorticoid, that is salt losing, hypotension, hyponatremia, low chloride, hyperkalemia, deficiency of cortisol, that is glucocorticoids की वजह से generally there will be hypoglycemia and generally hyperpigmentation due to the excessive secretion of ACTH, adrenocorticotropic hormone. Excess androgen leads to virilization of the female pseudo hermaphroditism. In males there will be precocious puberty due to excess of generally एंड्रोजन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है. किसी न किसी सब्जेक्ट से उठा के इसमें से एक नए क्वेश्चन देगा कॉन्जेनिटल एड्रेनो हाइपरप्लाजिया सर. Which of the following is not included in essential newborn care? So what are generally the components of essential newborn care? अगर वो हमको पता चल जाए तो इसमें से इजीली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. लोग components of essential newborn care includes generally call out the time of birth, है ना. नेक्स्ट डिलीवर द बेबी ऑन टू अ वार्म क्लीन एंड ड्राई टॉवल और क्लोथ एंड कीप द मदर्स चेस्ट एंड एब्डोमेन, कीप ऑन मदर्स चेस्ट एंड एब्डोमेन बिटवीन द ब्रेस्ट्स. Assess the baby's breathing while drying. Next is immediately dry the baby with a warm clean towel or piece of cloth. Clamp and cut the umbilical cord when cord pulsation stops or in 1 to 3 minutes, that is delayed cord clamping, that is हमने उसमें ही पढ़ा था कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज जनरली एडवाइज्ड इन ऑल द कंडीशन. ये हेपेटाइटिस इधर उधर HIV वगैरह देके आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, बट नॉट डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज ऑलवेज एडवाइज्ड. Leave the baby between the mother's breast to start a skin to skin care. Place and generally identity label on the baby and generally cover the baby's head with a cap. Cover the mother and baby with a warm cloth. Encourage the initiation of the breastfeeding. Administer injection vitamin K intramuscular to baby according to weight, which we have just studied above, that hemorrhagic disease of newborn which was generally caused due to the deficiency of vitamin K in generally newborn. That's why vitamin K की इंजेक्शन दी जाएगी वहाँ पे, इंट्रामस्कुलर दी जाएगी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. क्लीन द बेबी ऑफ कोर्स. टेम्परेचर मेंटेनेंस तो कितने बार इसमें बोला गया है. ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी नेसेसरी. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी जनरली स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल बोला जाता है, ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1 आवर जनरली, है ना. विद इन 1 आवर भी बहुत ज़्यादा है. सो बेस्ट आंसर क्या होता है जनरली, एज सुन एज पॉसिबल. सो दिस इज जनरली एज सुन एज पॉसिबल विल बी योर आंसर. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ईयर केयर इज नॉट इंक्लूडेड अंडर जनरली द न्यूबॉर्न इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. ENBC गाइडलाइंस में हमारे पास ये नहीं आता. नियोनेट इज डिटेक्टेड टू हैव फेशियल एबनॉर्मेलिटी. देखो सबसे फर्स्ट फेशियल एबनॉर्मेलिटी thymic hypoplasia. Now you are going towards your diagnosis, that is thymic hyperplasia or facial abnormality and tetralogy of Fallot, TOF, tetralogy of Fallot. These features should be present in which of the following syndrome? जब टेट्रालजी ऑफ फैलट और थाइमिक हाइपोप्लेजिया जनरली अगर आप पढ़ लोगे, देख लोगे ऑप्शन में, तो यू विल बी गुड टू गो विद डाइजर्स सिंड्रोम. दैट इज जनरली ड्यू टू द डिलीशन ऑफ 22q11 क्रोमोसोम. 22q11 दैट इज द लोकस, है ना. दैट विल बी जनरली प्रॉब्लम डिलीशन ऑफ 22q11 क्रोमोसोम. लुक, डाइजर सिंड्रोम में 3 चीज़ें याद रखना है आपको. बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट जनरली 3 चीज़ें आपको याद रखना है. @CAT करके याद रखना है आपको, ठीक है. CAT मीन्स जनरली कार्डियक डिफेक्ट्स, एबनॉर्मल फेसिस एंड थाइमिक एप्लेसिया जो कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है. लुक, द सम सिंड्रोम्स एंड एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज लाइक डाउन सिंड्रोम में यू विल हैव अ क्लियर जनरली एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल हार्ट एनोमली, दैट विल बी atrioventricular septal defect like VSD, like ventricular septal defect and atrial septal defect will be present there. Apert syndrome में COA, that is coarctation of aorta, and VSD will be there. Holt Oram में generally ASD and VSD will be there. Ellis Van Creveld syndrome में generally single atrium and ASD will be there. TAR syndrome, that is thrombocytopenia absent radii syndrome, that is ASD, atrial septal defect and tetralogy of Fallot will be there. Dysart syndrome में generally cardiac outflow tract defects will be there. Alagille syndrome में
Pulmonary artery stenosis and tetralogy of Fallot will be there. Williams syndrome में supravalvular aortic stenosis will be there. Cry-Du-Cat syndrome में VSD, PDA और ASD तीनों हो सकते हैं. So these are generally the associated congenital heart diseases. So this is going towards Dysart syndrome. Which of the following reflexes is first to appear in a child? सबसे पहले कौन सा जनरली appear होता है? यहाँ पे दिया हुआ है palmar grasp reflex, transferring object from one hand to another hand. Look, एक हाथ से दूसरे हाथ में जो transmission of objects होता है that takes place at about 5 to 6 months. ठीक है, 5 to 6 months. पैराशूट रिफ्लेक्स जो होता है जनरली इट कम्स एट 9 मंथ्स. ठीक है, एंड रूटिंग रिफ्लेक्स एट जनरली विल कम एट बर्थ ओनली. ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स विल कम एट बर्थ ओनली. सो जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेज इज फर्स्ट टू अपीयर इन अ चाइल्ड? सो यहाँ पे सबसे बेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, जो कि अंदर ही जनरली क्या हो जाता है, इंट्रायूट्राइन में ही जनरली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. लुक, रूटिंग रिफ्लेक्स इज 32 weeks age of gestation. Age of disappearance will be by 1 month. Palmar grasp will occur at 28 weeks age of gestation. Age of gestation 2 to 3 months age of disappearance हो जाता है. प्लेसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स जनरली 37 weeks एज ऑफ जेस्टेशन, 4 to 5 months में डिसअपियर होगा. मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स दैट इज एट 28 to 32 weeks एज ऑफ जेस्टेशन एंड 5 to 6 months पे एज ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा. टॉनिक नेक और फेंसिंग रिफ्लेक्स दैट इज जनरली अपीयरेंस कितना होता है 35 वीक्स एज ऑफ जेस्टेशन एंड 6 to 7 months पे जनरली एज ऑफ डिसअपियरेंस हो जाएगा. प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स विल बी एट 11 weeks AOG. लैंडौ रिफ्लेक्स विल बी जनरली एट 3 months. पैराशूट रिफ्लेक्स 4 to 9 months. क्रॉलिंग रिफ्लेक्स विल बी 28 weeks एज ऑफ जेस्टेशन और ए डिसअपियरेंस 7 to 9 months जनरली फॉर प्लांटर. And for Landau reflex, there will be covered up by generally voluntary actions, covered up by voluntary action, that again parachute reflex, and disappears after generally this crawling reflex after the crawling periods ends. So this is generally crawling reflex. So next, the better option here will be palmar grasp reflex, जो जनरली 28 weeks एज ऑफ जेस्टेशन पे होता है. रूटिंग रिफ्लेक्स एट बर्थ और बर्थ से भी पहले जनरली 32 weeks एज ऑफ जेस्टेशन पे जनरली आ जाता है. सो दैट्स वाई द बेटर आंसर विल बी पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स. मोरोज रिफ्लेक्स डिसअपियर्स बाय व्हिच एज? सो मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है जनरली अपीयर होता है 28 to 32 weeks एज ऑफ जेस्टेशन एंड इट्स डिसअपियर्स बाय 5 to 6 months. So better option here is 6 months. APGAR score generally system contains all of the following criteria. Look this APGAR. APGAR में APGAR जो होता है ना, I'll tell you everything regarding APGAR score. So look, APGAR score से बहुत questions बनते हैं. So APGAR score में generally A for appearance, P for generally heart rate, G for generally grimace that is reflex or irritability, A for activity that is muscle tone, and R for respiration. Not respiratory rate, it is respiratory effort. ठीक है, ये याद रखना है. एपगार स्कोर में R for respiration तो होता है, बट इट इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रादर इट इज कंसर्न विद द जनरली इफोर्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेटरी इफोर्ट कितना है. साइन देखो, अगर अपीयरेंस में अगर ब्लू और पेल हो तो उसको स्कोर कितना दिया जाएगा, 0 दिया जाएगा. इट इज जनरली एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग अ न्यूबॉर्न्स जनरली कंडीशन परफॉर्म्ड एट 1 and 5 and 10 minute ऑफ द बर्थ. इसको जनरली किया जाता है. इफ 5th minute एपगार स्कोर इज लेस देन 7/10 देन एपगार इज रिपीटेड एवरी 5th minute टिल 20 मिनट और 2 सक्सेसिव स्कोर्स आर. इफ 7 से कम आ रहा है जब तक, तब तक हम जनरली क्या करेंगे, इसको करते रहेंगे. नेक्स्ट देखो, हार्ट रेट इफ एब्सेंट 0 होगा. इफ ग्रीमेस दैट इज इरिटेबिलिटी और रिफ्लेक्स इज एब्सेंट दैट इज जनरली नो रिस्पॉन्स, तो 0. एंड जनरली लिम्फ है अगर एक्टिविटी में मसल टोन में तो दैट इज 0. एब्सेंट मीन्स अगेन रेस्पिरेटरी रिपोर्ट एब्सेंट, दैट इज अगेन एन स्कोर ऑफ 0. 1 में देखो, पेरीफेरीज अगर ब्लू है, बॉडी पिंक है, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अपीयरेंस में पेरीफेरीज ब्लू एंड बॉडी इज पिंक, दिस इज गिविंग यू ए स्कोर ऑफ एपगार 1. एपगार 1 में जनरली अगर हार्ट रेट की बात करो तो स्लो है, लेस देन 100 beats per minute. ग्रीमेस है जनरली, ग्रीमेस इज जनरली सीन देयर एंड सम फ्लेक्शन एंड वी क्राई इज देयर. 2 स्कोर किसको देंगे, कंप्लीट पिंक बॉडी, जनरली हार्ट रेट नॉर्मल दैट इज ग्रेटर देन 100 beats per minute. कॉफ और स्नीज जनरली ऑन जनरली रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में जनरली अगर आप उसके नाक में या फिर कान में जनरली अगर आप कुछ वो करोगे, इंड्यूस करोगे अगर रिफ्लेक्स को, तो देयर विल बी कॉफ एंड स्नीज. नेक्स्ट देयर इज एक्टिव मूवमेंट्स एंड गुड स्ट्रॉन्ग क्राई है अगर जनरली रेस्पिरेटरी फोर्स पे, तो जनरली दैट इज द स्कोर ऑफ 2. एपगार स्कोर इज नॉर्मल इन मोस्ट पेशेंट्स whom cerebral palsy subsequently develops. याद रखना ये क्वेश्चन, एफएमजी में तो नहीं बट जनरली उससे ऊपर वाले जो इतने भी एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस. नॉर्मल एपगार स्कोर विथ एसिडोसिस सीन इन हाई
फीटल कैटिकोलामाइन्स एंड मैटरनल एसिडोसिस, ये 2 कंडीशन है। यहाँ पे देखो टोटल स्कोर कितना होना चाहिए एपगार का, 10 होता है टोटल स्कोर। नो डिस्ट्रेस, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज सीन इफ यू गेट द स्कोर ऑफ 7 to 10, एंड माइल्ड डिस्ट्रेस इज देयर इफ यू गेट द जनरली स्कोर ऑफ 4 to 6, एंड 0 to 3 स्कोर जनरली इंडिकेट्स सीवियर डिस्ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज all regarding APGAR score that you require to know. So it is not respiratory rate, it is general respiratory effort. A neonate who was just born was found to have a heart rate of 120 beats per minute with weak and irregular respiratory efforts. He had a pink body with blue extremities. Look, pink body and blue extremities. ये देखो periphery is blue and body pink. So this is giving the APGAR score of 1. APGAR score of 1, और generally एक यहाँ से हो गया पिंक बॉडीज से, है ना, पिंक बॉडीज एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज, एक ये हो गया। फाउंड टू हैव हार्ट रेट ऑफ 120 पर मिनट, सो ग्रेटर देन 100 बीट्स, दैट इज गिविंग अ स्कोर ऑफ 2। सो दिस इज 2 स्कोर यहाँ पे। विथ वीक एंड रेस्पिरेटरी इफोर्ट्स, वीक एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी इफोर्ट्स, सो जनरली ये देखो वीक क्राई, सो दैट इज गिविंग अ स्कोर ऑफ 1। सो irregular respiratory efforts. He had a pink body with blue extremities, partially flexed, and he grimaced on generally stimulation by catheter. Stimulation जब दिया गया कैथेटर से तो he grimaced. So grimaced कितने पे है, 1 पे. So again 1 score for this grimaced on stimulation by catheter. So यहाँ पे देखो 2 3 4 5 है ना, जनरली 5. What is the APGAR score? Neonate who was just born was found to have a heart rate of generally 120 per minute, that is giving 2, with weak and irregular respiratory effort. So weak and irregular that this is going towards 1. He had a pink body, pink body के लिए generally कितना, body pink, that is again 1. blue extremities partially flexed, पार्शियली फ्लेक्स, तो ये वाला छोड़ दिया था शायद हमने। सो सम फ्लेक्शन, दैट इज अगेन गिविंग पार्शियली फ्लेक्शन। सो दिस इज जनरली पार्शियली फ्लेक्स्ड, दैट इज जनरली एक्टिविटी मसल टोन। सो ये 1 छूट गया सर। सो ये देखो 2 3 4 5 और 6। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर 6 एपगार स्कोर। ऐसे ही कैलकुलेट करना है हमको जनरली एपगार स्कोर। आगे देखो 3-4 क्वेश्चन सामने, ये एपगार स्कोर रख के कैलकुलेट कर लो, विल बी गुड टू गो विद जनरली कैलकुलेटिंग एनी एपगार स्कोर। जनरली जॉन्डिस, ये क्या, न्यूनेटल जॉन्डिस बिकम्स डिटेक्टेबल एट सीरम बिलीरुबिन। सो जनरली सीरम बिलीरुबिन, देखो बिलीरुबिन सबसे पहले समझना है हमको जनरली, एंड वी नो फ्रॉम आवर बायोकेमिस्ट्री दैट बिलीरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ जनरली हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है, 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन। जॉन्डिस इज इन नियोनेट विल बी डायग्नोज्ड इफ द बिलीरुबिन इज ग्रेटर देन 5 mg पर डेसीलीटर, एंड एडल्ट में जनरली 2 to 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब जनरली ग्रेटर देन 5 mg, ये क्या है, कट ऑफ वैल्यू है, 5 mg पर डेसीलीटर। अपेरेंट इन हेड एंड नेक, हेड एंड नेक पे जॉन्डिस कब अपेरेंट होता है, द लेवल रीचेज 5 mg पर डेसीलीटर। लो ट्रंक एंड थाई जनरली स्टार्ट्स अपीयरिंग लाइक येलो एट द लेवल व्हेन इट रीचेज 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेग्स में जनरली अपीयर होने लगता है 15 mg पर डेसीलीटर पे, एंड जनरली पाम्स एंड सोल्स पे ग्रेटर देन 15 mg पर लीटर, ग्रेटर देन 15 mg पर लीटर। सो कट ऑफ वैल्यू कितना है, 5 mg% और 5 mg पर डेसीलीटर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन टर्म न्यूबॉर्न्स रिक्वायरिंग जनरली ट्रीटमेंट। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर बात करें जनरली इन चिल्ड्रन, दैट इज जनरली RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी लीड्स टू द मोस्ट केसेज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन चिल्ड्रन, दैट इज जनरली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केस में। कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में जनरली इट अपीयर्स विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। पीक वैल्यू एक्सीड्स ग्रेटर देन 15 mg% और 15 mg पर डेसीलीटर। रेट ऑफ राइज ऑफ सीरम बिलीरुबिन इज ग्रेटर देन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे, ठीक है, पर डे पर डे। से नेक्स्ट देखो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसके लिए, फोटोथेरापी एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आर कंसिडर्ड द बेस्ट ट्रीटमेंट हेयर। सो इसमें अगर देखोगे, इफ सीरम बिलीरुबिन इज ग्रेटर देन 12 mg% इन प्रीटर्म एंड ग्रेटर देन 15 mg% इन द टर्म, इट इज इंडिकेटिव ऑफ जनरली फोटोथेरापी एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जनरली डन बाय द अम्बिलिकल वेन और निगेटिव ब्लड यूज फॉर डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। सो यहाँ पे देखो which is the most common cause of jaundice in term newborns requiring treatment, so that is generally pathological पूछ रहा है, so this is RH incompatibility. Newborn child is brought with complaints of having jaundice on day 3 of life. How much should be the minimum level of the क्या है jaundice, minimum level टू डायग्नोज जॉन्डिस, ऐसा कुछ है, क्लियर नहीं है यहाँ पे, बट लेट्स सी टाइम ऑफ जॉन्डिस एंड जनरली कॉज यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखो अगर विद इन 24 आवर्स में हो रहा है जॉन्डिस, सो मेन कॉज विल बी जनरली मोस्ट कॉमन कॉज दैट इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। इफ द बेबी प्रेजेंट्स विद द जॉन्डिस इन 2 to 3 days ऑफ द लाइफ, फर्स्ट
2 to 3 days of the life. The most common cause will be physiological jaundice, Crigler-Najjar and early onset of breast milk jaundice. ठीक है, ये सब कॉज हो सकते हैं. 3rd to 7th day bacterial sepsis, UTI and polycythemia greater than 1 week, all remaining causes can be there. So time of jaundice यहाँ पे 3 day बता रहा है. So generally 3 day अगर हमको बता रहा है, so generally at that time there will be ये 5 mg है शायद यहाँ पे 5 mg% will be how much will be the level of bilirubin the jaundice. So this is generally 3 mg 5 mg होना चाहिए, 5 mg होना चाहिए. आगे चलिए देखते हैं. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन अ फुल टर्म न्यूबॉर्न यूजुअली जनरली रिजॉल्व्स बाय दैट इज 2 weeks. ठीक है, यूजुअली रिजॉल्व्स बाय 2 weeks. Look, there can be a little bit of confusion between how to diagnose a physiological jaundice and how to diagnose a pathological jaundice. So if I talk about the onset of the physiological jaundice, visible on the 2nd to 3rd day of the life. अगर 2nd to 3rd day of life पे है generally, so this is physiological jaundice and presents in the first 24 to 36 hours of the life, that is pathological jaundice. Increase in total bilirubin, that is in the physiological jaundice does not increase by greater than 5 mg per dl per day, and pathological jaundice it increases by 0.2 mg per dl per hour or greater than 5 mg per dl per day. पीक टोटल बिलीरुबिन जनरली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में पीटीबी पिक्स एट जनरली अराउंड 12 mg पर डेसीलीटर, 15 तक नहीं जाता है, बट जनरली पीटीबी इंक्रीजेज टू जनरली हाउ मच, दैट इज ग्रेटर देन 12 mg पर डेसीलीटर इन फुल टर्म्स और 10 to 12 mg पर डेसीलीटर इन प्री टर्म्स. डायरेक्ट बिलीरुबिन की अगर मैं बात करूँ जनरली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में, तो लेस देन 2 mg पर डेसीलीटर and greater than 2 mg per deciliter in case of the pathological jaundice. And duration, it does not persist beyond 10 to 14 days, whereas this persists beyond 10 to 14 days after the birth. Physiological jaundice generally it is a diagnosis of exclusion, that is only one criteria of pathological jaundice needs to be fulfilled to label the patient as having pathological jaundice. अगर वो भी criteria नहीं meet करा, then it is physiological jaundice. नेक्स्ट देखो, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्राइटेरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, वही जो क्राइटेरिया यहाँ पे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए. सो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए देखो, प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिनोट्स द जॉन्डिस इज पैथोलॉजिकल, दैट इज क्लिनिकल जॉन्डिस डिटेक्टेड बिफोर 24 आवर्स ऑफ एज, rise in serum bilirubin greater than 5 mg per dl per day, and generally the serum bilirubin greater than 15 mg per dl. Clinical jaundice persists beyond 14 days of life, clay white colored stool and or dark urine staining the generally clothes yellow, direct bilirubin greater than 2 mg per dl at any time. Characteristics of physical jaundice क्या है? Physiological jaundice first appears between 24 and 72 hours of age, and maximum intensity seen on 4th and 5th day in term and 7th day in the preterm neonate. So generally pathological jaundice criteria include all except 24 hours later but within 72 hours. This is generally the criteria of physiological jaundice. प्रोटीन इन काउज मिल्क इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क. ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क की थोड़ा सा क्या कर लीजिए, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला टेबल कर लेते हैं. लुक, अब अगर मैं बात करूँ जनरली प्रोटीन की, तो ह्यूमन मिल्क में जनरली 1.1 ग्राम %, वहीं पे जनरली काउज मिल्क की बात करूँ तो 3 to 3.5. कैलोरीज की बात करूँ तो 65 किलो कैलोरी ह्यूमन में एंड जनरली 60 किलो कैलोरी जनरली काउज में, एंड जनरली लैक्टोज 7.4 ग्राम इन ह्यूमन एंड 4.5 ग्राम इन काउज मिल्क. फैट की बात करूँ तो 3.8 ग्राम रिच इन PUFA एंड जनरली 3.7 ग्राम दैट इज जनरली काउज मिल्क. ऑलमोस्ट सेम ही है. सोडियम और पोटासियम की बात करूँ तो सोडियम 7 एंड पोटासियम 14 इन ह्यूमन मिल्क एंड जनरली काउज मिल्क में 25 और 35. सो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोटीन इन काउ मिल्क. सो प्रोटीन काउ मिल्क में जनरली क्या होता है? 1.1 ग्राम, यहाँ पे 3.5 ग्राम, सो ज़्यादा होता है. सो दिस इज जनरली 1 है और यहाँ पे 3 है. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ट्रिपल. मैक्सिमम हीट लॉस इन नियोनेट इज फ्रॉम, नियोनेट्स में द मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज जनरली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी सर्फेस इज फ्रॉम देयर स्काल्प, दैट इज हेड और स्काल्प. which is the best marker for neural tube defect. neural tube defect के लिए जनरली neural tube defect we have just studied this from our anatomy, और किसी टॉपिक में इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा. एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, PSM सब में हमने किया है. एंड जनरली इट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द closure of neural tube, and generally fetal substances like alpha fetoprotein, acetylcholine esterase, जनरली अगर क्या हुआ है, जनरली अगर न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हुआ तो जो फीटल सब्सटेंस है जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेच, ये सब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ बाहर आ जाता है. एंड जनरली दैट इज गोइंग टू एंड दैट इज गिविंग अस द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दैट इज 16 to 18 वीक्स पे जब हम करेंगे. सो दिस इज जनरली अल्फा फीटोप्रोटीन. ये अगर इनहिबिन ए की बात मैं करूँ तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रुपल टेस्ट जनरली फॉर Down syndrome, which we do in generally
आवर ओबीजी में हमने ये किया हुआ था। गाइनेकोमेस्टिया इन नियोनेट इज ड्यू टू गाइनेकोमेस्टिया इन नियोनेट इट इज जनरली सीन इन 20 to 30% ऑफ द न्यूबॉर्न एंड दैट इज जनरली ड्यू टू द ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ जनरली इस्ट्रोजन। और ये आप लोगों को पता होगा कि जनरली वजाइनल ब्लीडिंग जो भी मैंने अभी ऊपर बात किया था न्यू बॉर्न में, एंड जनरली ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ इस्ट्रोजन की वजह से जनरली ग्रोथ ऑफ जनरली क्या हो सकता है, देयर माइट बी ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ऑल्सो विच इज कॉल्ड एज गाइनेकोमेस्टिया। सो जनरली समथिंग शुड बी अवॉइडेड, लाइक जनरली गांव घर में क्या होता है कि जनरली अगर वैसा हुआ तो जनरली तो पीपल जनरली प्रेस द ब्रेस्ट, है ना, और उसको ऊज आउट करने की जनरली कर सकते हैं। सो दैट इज जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इट इज़ नॉट इंडिकेटेड एट ऑल। वो और वो कभी करना भी नहीं चाहिए। जब खुद ब खुद कुछ दिनों के बाद वो एस्ट्रोजन का जनरली क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, इट विल कम टू इट्स नॉर्मल जनरली नॉर्मल साइज, ठीक है। सो वो गाइनेकोमेस्टिया खुद से रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड शोन इन द इमेज हुज मदर इज हैविंग ब्रोंकियल अस्थमा। सो मदर में क्या दिया हुआ है, एसोसिएटेड विथ ब्रोंकियल अस्थमा, दिस इज जनरली। और यहाँ पे देखो ये फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये यहाँ पे एक्जिमा के जैसा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स एटोपिक डर्माटाइटिस। लुक, एटोपिक डर्माटाइटिस हमने कहाँ पे किया था, इन आवर dermatology. So atopic dermatitis, it is the most common chronic relapsing skin disease seen in infancy and childhood, associated with asthma. There comes the question, associated with asthma, allergic rhinitis and food allergy. Atopic dermatitis is predisposed to developing allergic rhinitis and asthma in later childhood. Features will be pruritus, facial and extensor eczema, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, in infants and children, flexural eczema in adolescents, chronic or relapsing dermatitis, personal or family history of generally atopic disease. So these are generally the atopic dermatitis. For accurate measurement of axillary temperature in the newborn, thermometer is kept for newborn में जनरली अगर आप एक्जिलरी ले रहे हो तो हमारे जैसे एडल्ट के जैसे नहीं ले सकते, यू हैव टू कीप द जनरल थर्मामीटर फॉर एटलीस्ट 3 minutes देयर। लुक, हाउ टू टेक आर्मपिट और एक्जिलरी टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न, दिस इज द गाइडलाइन। Place the tip of the thermometer in the dry armpit. Close the armpit by holding the elbow against the chest for 3 minutes. Remove the thermometer after you hear the signal, usually a series of beeps, and read the temperature on the screen. अगर beeps नहीं आ रहे हैं, जो अभी नए वाले में होते, जो पुराना वाला मरकरी थर्मोमीटर था उसमें तो कोई beep वगैरह आता नहीं था. So for that you have to hold for at least 3 minutes. A child has a fever if the armpit temperature is over 99 degree Fahrenheit. ठीक है, 37.2 degree Celsius. If you are not sure if it is correct, check it by taking a rectal temperature. You can go for rectal temperature also, ठीक है. But generally we do not go for the rectal temperature time and again. But if it is not, if you are not sure कि right reading there are, then you can go for rectal. Anterior fontanelle corresponds to all the sutures structures except that is nothing but lambdoid suture. ये जनरली posterior fontanelle में होता है. कैसे देखो, ये देखो lambdoid suture corresponds to posterior fontanelle. ये देखो lambdoid suture यहाँ पे, and this is generally the posterior fontanelle. ये देखो ये जनरली anterior fontanelle है, ये मेटोपिक suture, frontal bones और anterior fontanelle, ठीक है. सो ये जनरली आप एक बार इमेज देख लो. इन नियोनेटल सेप्सिस एक्यूट फेज रिएक्टेंट, ये हमने पैथोलॉजी में किया था. सीआरपी इज द एक्यूट फेज रिएक्टेंट. ट्रू अबाउट द गिवन कंडीशन, दैट इज ये देखो आगे भी हमने ये फिगर देखा था, दिस इज सेफेलोहेमाटोमा, जॉन्डिस इज प्रोलॉन्ग्ड हेयर, ठीक है. आगे देखो हचिनसन टीथ आर सीन इन, ये हचिनसन टीथ देखो, हचिनसन टीथ. सो दिस इज जनरली सीन इन द केस ऑफ लेट congenital syphilis, not early congenital spirochete infection, नहीं. दिस इज जनरली सीन इन लेट congenital syphilis. It is a common pattern of presentation for congenital syphilis and consists of three phenomena, that is Hutchinson triad, interstitial keratitis, Hutchinson incisure, and eighth nerve deafness. Epstein pearl are seen in Epstein pearl. So look, Epstein pearls, they are generally क्या होता है Epstein pearl? Epstein pearl is a white keratin containing cyst on the palate or generally palatal or alveolar mucosa. So this is generally a normal finding in the finding, and there no treatment is generally required, ठीक है. Congenital rubella syndrome has all of the following except. congenital rubella syndrome में generally the classical triad for congenital rubella syndrome जो बहुत बार पूछा गया है, that is sensory neural deafness. Next, eye abnormalities like especially retinopathy, cataract and microphthalmia. Congenital heart disease especially patent ductus arteriosus. Salt and pepper retinopathy is the most common generally ocular manifestation of congenital rubella. Other manifestation क्या हो सकता है, microcephaly which has been the question, low birth weight, thrombocytopenic purpura generally presents as a characteristic blueberry muffin rash. So this is generally thrombocytopenic purpura and hepatomegaly. So यहाँ पे देखो has all of the following except hydrocephalus. A 28-year-old woman gave birth to a small 4-age newborn at 38 weeks of pregnancy. On examination, the newborn was found to have rhinitis, distended abdomen, wrinkled skin, and palmoplantar blisters. The woman had an earlier
History of abortion and stillbirth, the most likely diagnosis. So this is going towards your congenital syphilis. Bone involvement congenital syphilis में क्या होता है? Severson's saddle nose. Teeth involvement notched पेग शेप्ड इंसीजर, जिसको हम हचिनसन टीथ अभी ऊपर देखे थे. पिगमेंट्री इन्वॉल्वमेंट दैट इज लीनियर स्कार्स और रेगेट्स, जिसको हम बोलते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. इंटरस्टिशियल केराटाइटिस प्रेजेंट्स इन द फर्स्ट और सेकेंड डिकेड ऑफ द लाइफ. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दैट इज जनरली एट्थ क्रेनियल नर्व डिफनेस. क्लासिकल हचिनसन ट्रायड दैट इज डिफेक्टिव इंसीजर, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस एंड एट्थ नर्व cranial deafness. Next देखो, the time usually taken for air to reach the descending colon after birth in a normal infant में it takes about 8 to 9 hours. Drug of choice for acute lead encephalopathy. Lead encephalopathy कब हम diagnose कर सकते हैं? when the serum lead level is generally greater than 45 micrograms per deciliter. और ट्रीटमेंट इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरली 2,3 डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सक्सीमर भी बोलते हैं, एंड दैट इज गिवन हियर. Key features of kangaroo mother care are all except generally it is done for babies with cyanosis. Generally skin to skin contact between the mother and baby, that is the kangaroo care. Exclusive breastfeeding, of course, initiated in a facility and continued at home, of course, right. Kangaroo care में for preterm lesser than 1500 ग्राम and breathing independently, उनके लिए ही जनरली हम क्या करेंगे? कंगारू केयर करेंगे. बस 4-5 क्वेश्चन और रह गया, मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ. निपल कन्फ्यूजन मीन्स जनरली बेबी फेड विद द बोटल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सकल एट ब्रेस्ट. और मदर कंप्लेन्स दैट बेबी इज मोर कंफर्टेबल एंड ब्रेथ्स बेटर व्हेन हेल्ड अगेंस्ट शोल्डर. जब शोल्डर पर रखते हैं तो बेबी अच्छे से क्या करता है? ब्रेथ करता है और वो रोता नहीं है. जब यहाँ से हटाता हूँ, नीचे रखता हूँ, तो वो क्या करने लगता है? रोने लगता है. सो दिस इज जनरली व्हाट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम डू यू सस्पेक्ट. और जनरली जब आप डॉक्टर बन के बैठोगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएगा. आपका कोई डायग्नोसिस बना के नहीं देगा, क्या हो रहा है वो बोलेगा. सो दिस इज गोइंग टूवर्ड्स जनरली ऑर्थोपनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी व्हेन लाइंग डाउन. जब वो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा. Which of the following component of human milk is not protective against GIT infection? That is beta 2 transferrin. Lactoferrin, lysozyme and bifidus factor, they all are generally protective against GIT infections. Increased oxygen delivery during prematurity causes all the following except, देखो, increased oxygen delivery during prematurity causes all the following. vasoconstriction करवाता है, vasoobliteration करवाता है और neovascularization, तीनों करवाता है. What it does not do is vasodilation. ये हमने कहाँ पढ़ा था? न्यूवास्कुलराइजेशन वाला टॉपिक. दिस वी डीड इन जनरली ऑक्सीजन थेरापी. कहाँ पे? एनेस्थेसिया में. Expressed breast milk can be stored at room temperature for how many hours? Expressed breast milk. Look, I'll tell you everything regarding this. Expressed breast milk storage. रूम टेम्परेचर पे 8 आवर्स तक कर सकते हो स्टोर. रेफ्रिजरेटर में 24 आवर्स एंड डीप फ्रीजर में 3 मंथ्स तक इसको स्टोर किया जा सकता है. सो यहाँ पे पूछ रहा है रूम टेम्परेचर, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 8 आवर्स. ग्रोइंग फीटस डिराइव्स एनर्जी फ्रॉम. सो ग्रोइंग फीटस के लिए सबसे मेन एनर्जी इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट. एनर्जी का सबसे मेन सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट है. जनरली व्हिच टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज मोस्ट कॉमनली सीन एज sequel of bilirubin encephalopathy. Bilirubin encephalopathy में generally most commonly seen is extrapyramidal cerebral palsy. Look, extrapyramidal cerebral palsy is caused by bilirubin encephalopathy. It is also associated with deafness. Clinical manifestations इसमें क्या होता है? Dyskinesia such as athetosis, choreiform movements, dystonia, tremors and rigidity. Early indicator is inability to reach for and grasp a dangling ring by the age of 6 months. Types of cerebral palsy में देखो, spastic cerebral palsy which is the most common type of cerebral palsy. It has the following subtypes also, that is spastic quadriparesis. It is more seen in the term babies. Spastic diplegia more in preterm babies associated with periventricular leukomalacia. Spastic hemiplegia recognized after 4 to 6 months of age. Hypotonic or atonic cerebral palsy. Next type is extrapyramidal cerebral palsy. Athetoid cerebral palsy generally which is seen in generally Kernicterus also. So this is all regarding your neonatology. The first topic finishes here and the second topic again वो रटने वाला ही topic है, that is nothing but the milestones in the children, and we will discuss about this second topic in our second part of the video. Thank you so much. Till then, keep liking, keep sharing and keep learning.